A very good morning to all of you. As you all know that class 10th students, chapter number 10 circles is going on, and in exercise 10.2 last question is left. Today I am going to start firstly that last question. After that today we will begin the chapter 12 areas related to circles. The question number 10 of question number 13 is that prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. What is given? Question number 13 of exercise 10.2. एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD in which a circle is circumscribed. It means circle touches all four sides at four different points. Say these points are P, Q, R and S. We have to prove what? कि opposite sides of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं, ये हमें प्रूफ करना है. मींस हमें प्रूफ करना है इस एंगल का और इस एंगल का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री है. सिमिलरली हमें ये भी प्रूफ करना है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम भी कितना है, 180 है. ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. तो गिवन क्या है? गिवन है ABCD is a quadrilateral in which a circle is circumscribed with center O. सर्किल का सेंटर क्या है? O है ये. The center of the circle is O. To prove, what we have to prove? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कंस्ट्रक्शन now what is construction? Join OP, OQ, OR and OS. These points OP, OQ, OR, OS. Join OP, OQ, OR and OS. इनको ज्वाइन कर दिया. Say in this diagram this angle is 1, this is 2, this is 3, this angle is 4, this angle be 5, this is 6, this is 7 and this angle be 8. हमने फिगर में लेट कर लिया इन सारे एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्टली इन ट्रायंगल APO एंड ASO में, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO में फर्स्ट angle APO and ASO each 90 because AP is tangent and OP is radius of the circle. So as we all know that the statement of theorem 10.1, tangents make a right angle with the radius. Yes, angle APO equals to angle ASO each 90. You will write the statement of theorem 10.1. Second, OA equals to क्या है, कॉमन है. OA equals to OA, this side is common side. And third one, we can take AP equals to AS or we can take OP equals to OS. AP AS के इक्वल ले सकते हैं, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, या OP equals to OS ले सकते हैं, रेडियाई सर्कल्स की हैं. तो हमने रेडियाई ले ली. OP equals to OS, रेडियाई ऑफ सर्कल, बाय RHS से ट्रायंगल APO is congruent triangle
ASO, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. देन बाय CPCT से वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के. Similarly we can prove that angle 3 equals to angle 4, angle 5 equals to angle 6 and angle 7 equals to angle 8. Let this equation be 1. Now as we all know that a complete round of a point makes an angle 360 degree. As we know a complete round of a point makes an angle 360 degree, means angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 equals to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 equal to 360 degree. We know that actually we need what, क्या चाहिए हमको चाहिए AOB प्लस COD कितना होना चाहिए 180. AOB एंगल में एंगल आ रहे हैं 2 और 3 और COD एंगल में आ रहे हैं एंगल 6 और 7. Only we need these 4 angles. Others 4 angle we can replace these angle by using this equation number 1. तो 1 हमको नहीं चाहिए, लेकिन 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. तो यहां पर 2 आ गया, एंगल 2 एज इट इज, 3 एज इट इज. 4 नहीं चाहिए, लेकिन 4 किसके इक्वल है, 4 3 के इक्वल है. यहां पर एंगल 3 आ गया, प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के. 6 आ गया, ये 6 एज इट इज, 7 एज इट इज. सिमिलरली एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 8 7 के इक्वल है. तो यहां पर 7 आ गया इक्वल टू 360 डिग्री. किसका यूज किया हमने यहां पर, बाय इक्वेशन 1 का यूज किया. 2 एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 7, 2 एंगल 7 इक्वल्स टू 360. वी कैन टेक 2 कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री. 2 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड. फ्रॉम दिस डायग्राम द वैल्यू ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल AOB. तो 2 प्लस 3 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल AOB प्लस 6 प्लस 7 की जगह क्या आ जाएगा, COD. एंगल COD इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये प्रूव कर दिया हमने कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली. इन द एग्जाम यू कैन राइट डायरेक्टली कि सिमिलरली व्हाट, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो मींस हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अ सर्किल इज circumscribed, then the opposite sides of a quadrilateral makes a supplementary angles at the center of the circle. हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है. ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13. इट वाज द लास्ट क्वेश्चन. नाउ I am going to start the next chapter, chapter number 12. Topic: areas related to circles. Areas related to circles, chapter number 12. As you all know that what is circle, already I have told. The collection of all the points in a plane, the collection of all the points in a plane such that the distance of all the points from a fixed point are equal. प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और इन प्लेन की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल है. देन दिस फिक्स पॉइंट
when we join all these points, then we formed a circle, and the distance of all these points which are available in the plane from a fixed point are equal. इन सारे points की distance एक fixed point से क्या है, equal है. तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है इनको ज्वाइन करके all points को, that this fixed points are said to be a center of the circle, denoted by O. This point is known as the center of the circle, and this boundary is known as the circumference of the circle. ये बाउंड्री जो है ये सर्कल की पेरीमीटर है, circumference. और ये जो पोर्शन पार्ट दिख रहा है आपको सारा प्लेन, इस सर्कल के अंदर का जो पार्ट है वो इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा. तो चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल. हमें उन सर्कल्स का एरिया निकालना है इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब डिफरेंट सिचुएशन पे सर्किल से रिलेटेड एरियाज हमें कैलकुलेट करना है. जो सर्किल से रिलेटेड है उनका एरियाज कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की. फर्स्टली, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, फर्स्टली the knowledge of the formulas, it is very necessary. Now firstly, before starting the first exercise of this chapter, I am going to explain the formulas which is related to first exercise. Formula number 1, area of circle. Circle का area क्या होता है, pi r square. As you all know that what is r here, r is the radius of the circle, and you know about pi. Pi is an irrational number, but the value of pi is 22/7. Perimeter of circle, perimeter of circle means circumference. Circumference ये क्या होता है आपका 2 pi r. अगर बात करें हम, this is the circle, area of circle, perimeter of circle. We are talking about the two concentric circle. You know about two concentric circles? Two circles are said to be concentrics if they have a same center but different radii. In this diagram, suppose O is the center of the circle, small r be the radius of the inner circle, and capital R be the radius of the outer circle. Then area of this ring, like this shaded portion. What will be the area of this ring? Area of ring is equals to pi capital R square minus small r square. Area of circle pi r square. Outer circle का area, outer circle का area pi capital R square. Inner circle का area pi small r square. अगर बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें, then what becomes shaded portion ना. अगर बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाला सर्किल हटा दिया जाए तो इस shaded portion का एरिया आ जाएगा. दोनों में से पाई क्या ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन, और फॉर्मूला क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. देखिए आप, एरिया ऑफ रिंग पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका जी. नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मीन्स सपोज देयर इज अ कार. There are 4 wheels in a car, as we all know that. Then our question is that कि in 1 minute, how many revolution of each wheel makes in 1 minute? Number of turns, 1 मिनट में जो गाड़ी का पहिया है कितने टर्न्स करेगा उसका व्हील, गाड़ी का व्हील जो है कितने टर्न करेगा. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन में सरकमफ्रेंस.
सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। क्या फॉर्मूला बना कि अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं 1 मिनट में तो हमें टोटल डिस्टेंस लेनी होगी कितने टाइम की, वो भी 1 मिनट की, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, सर्कमफ्रेंस से, व्हील के। यहीं से अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ जाए व्हील का तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, और अगर निकालना पड़ जाए टोटल डिस्टेंस हमें तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, उसके सर्कमफ्रेंस से कर देंगे। नाउ दीज फॉर्मूलाज we will utilize in our first exercise. One thing is also for the semicircle. You know about semicircle? Semicircle. This is a semicircle. R be the radius of the semicircle. तो एरिया क्या होगा semicircle का, एरिया ऑफ semicircle. semicircle का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। और पैरामीटर क्या होगा सेमी सर्किल का, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का पैरामीटर क्या होगा, r प्लस r, 2r प्लस दिस बाउंड्री, द होल बाउंड्री इज इक्वल्स टू 2 पाई r, बट दिस इज द हाफ ऑफ द, दिस इज द सेमी आर्क ऑफ द सर्किल। ये सर्किल की सेमी आर्क है। कंप्लीट आर्क ऑफ सर्किल इज 2 पाई r, तो सेमी आर्क ऑफ द सर्किल पाई r, ये पाई r हुआ। बात करें अगर क्वाड्रेंट की, व्हाट इज क्वाड्रेंट, द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये भी रेडियस है क्वाड्रेंट की, ये भी रेडियस है। इन ए क्वाड्रेंट वन एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, तब दिस सेक्टर इज लाइक अ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का फोर्थ पार्ट है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू r प्लस r, 2r प्लस, ये क्या है, ये सर्किल का फोर्थ पार्ट है। पूरी कंप्लीट बाउंड्री कितनी होती है, 2 पाई r, उसका फोर्थ पार्ट है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आंसर आ गया, 2r प्लस पाई r अपॉन 2। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट 2r प्लस पाई r अपॉन 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग। दिस डायग्राम यू विल मेक माय डियर स्टूडेंट्स हियर इन दिस इज अ रिंग, दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज कैपिटल R। तो एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्किल दैट इज सर्कमफेरेंस 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। फॉर सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई r स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल 2r प्लस पाई r। These formulas we will utilize in our first exercise. Now I am going to start the first exercise, which is 12.1. (12.1) exercise. The question number 1. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. दो सर्किल्स हैं जिनकी रेडियाई गिवन है 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle. We have to calculate the radius of that circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the given circles. क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 1. Let R1 and R2 be the radii of given circles
and R be the radius of the new circle. गिवन है R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर है और R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। दो सर्किल्स हैं, एक सर्किल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्किल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, हमें उस सर्किल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस R है और जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्किल्स के सरकमफ्रेंसेस के सम के इक्वल है। एज circumference of new circle is equal circumference of is equal किसके इक्वल है, sum of the circumferences of गिवन सर्किल्स। यही तो है ना कि सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल किसके इक्वल है, सब इस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल है, सम के इक्वल है। किसके, सरकमफ्रेंसेस ऑफ गिवन सर्किल्स के, इन दोनों सर्किल्स के सरकमफ्रेंसेस के सम के इक्वल है। इस सर्किल का सरकमफ्रेंस, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू पहले सर्किल का सरकमफ्रेंस, पहले सर्किल की रेडियस r1 है प्लस दूसरे सर्किल की रेडियस r2 है। This implies 2 pi r equal to 2 pi we can take common here, then what becomes r1 plus r2, 2 pi से 2 pi cancel तो r की वैल्यू क्या आ गई है, r1 plus r2। This implies r equals to r1 की वैल्यू 19 है और r2 की वैल्यू 9 है, दोनों को क्लब कर दीजिए, क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। Hence the radius of the new circle is 28 सेंटीमीटर। नए सर्किल की रेडियस क्या होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 1। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दिस टाइम व्हाट इज गिवन, दो रेडियाई गिवन है दो सर्किल्स की 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle. We have to calculate the radius of that circle whose area is equal to sum of the areas of two circles. जिसका एरिया किसके इक्वल है, दो गिवन सर्किल के सम के इक्वल है। सेम लैंग्वेज वी विल फॉलो हियर। नाउ द रेडियस आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए प्लीज, let r1 and r2 be the radius of the given circles and r be the radius of the new circles. Then a circle radius क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, another circle radius 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इस बार circumference ना देके क्या दिया है, इस बार एरिया दिया है। एरिया ऑफ न्यू सर्किल इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ गिवन सर्किल्स। इस बार यही तो दिया है। इस बार क्या कहा इन्होंने कि एरिया जो है न्यू सर्किल का वो सम ऑफ द एरियाज ऑफ द गिवन सर्किल्स के इक्वल है। तो न्यू सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, गिवन सर्किल का एरियाज पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पाई कॉमन ले सकते हैं यहां से, राइट साइड से पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। Then what becomes r square equal to r1 square plus r2 square। r square equal to r1 की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर और r2 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। Then what becomes 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। Then r square equal to ऐड कर दीजिए दोनों को, क्या आ गया 100। तो r की वैल्यू क्या आ गई है, 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। Hence the radius of the new circle is 10 सेंटीमीटर। नए सर्किल की रेडियस क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन था कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ द सेम एक्सरसाइज।
Question number 3. Figure 12.3 depicts an arched target marked with 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. एक आर्ची टारगेट्स है जो 5 सेक्टर्स में 5 रीजन्स में बना हो 5 रीजन से बना हुआ है। जो सबसे अंदर का जो सेंटर से रिलेटेड है एरिया वो गोल्ड है, नेक्स्ट वन रेड है, उसके बाद ब्लू है, फिर ब्लैक और लास्ट में क्या है, व्हाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, जो सबसे अंदर वाला जो गोल्ड वाला रीजन है उसका जो डायमीटर है ये, दिस इज अ गोल्ड पोर्शन, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ये 21 सेंटीमीटर और दिस इज गोल्ड रीजन, ये गोल्ड है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, हर सेंटीमीटर की जो वाइड है, जो चौड़ाई है हर उसकी। नेक्स्ट वन ये रहा, उसके बाद ये रीजन ये रहा, नेक्स्ट रीजन ये और लास्ट रीजन। इन्होंने कहा गोल्ड के बाद कौन सा था, गोल्ड के बाद रेड था, रेड के बाद ब्लू था, ब्लू के बाद ब्लैक और लास्ट में कौन सा था, व्हाइट। इन्होंने कहा हर ये जो सारे बैंड हैं ये सारे जो बैंड हैं इनकी जो विड्थ है सबकी सेम है। सबकी कितनी विड्थ है, 10.5 सेंटीमीटर है, सबकी 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स, हर रीजन का एरिया निकालना है। मींस गोल्ड का एरिया क्या होगा, रेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, इन सब का एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3 में, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना दिया है, गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा, 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ ईच रीजन, हर रीजन की विड्थ कितनी दी है, 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन इज इन दिस गिवन डायग्राम, गोल्ड रीजन इज लाइक अ सर्किल एंड सर्किल का एरिया वी नो वेरी वेल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है गोल्ड रीजन के लिए 21/2, 10.5, 21/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए गोल्ड रीजन को और आंसर आ जाए आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। नेक्स्ट कौन सा रीजन है, रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, ये रेड रीजन है, दिस रीजन इज लाइक अ रिंग। अगर इस बड़े सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब रेड रीजन की रेडियस क्या होगी अंदर वाले गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी है 10.5 और हर बैंड की जो रेडियस है वो कितनी है 10.5। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये रेडियस है रेड रीजन की 10.5 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 21। सो दैट रेडियस ऑफ रेड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा देखिए, फॉर रेड रीजन रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या होगी 10.5 गोल्ड की है और हर बैंड की विथ 10.5 है तो कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड रीजन रेड रीजन का एरिया क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल के एरिया क्या कर दो माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू पाई, कॉमन ले लेंगे बाहर, आउटर सर्किल का रेडियस 21 का होल स्क्वायर, इनर सर्किल का रेडियस 10.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे इज इक्वल्स टू पाई का वैल्यू 22/7, 21 का होल स्क्वायर 441, 10.5 का स्क्वायर कर देंगे हम
110.25। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस रीजन का एरिया आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका रेड रीजन का एरिया। रेड रीजन के बाद नेक्स्ट रीजन है आपका ब्लू रीजन। ब्लू का एरिया कैसे निकालेंगे अब देखिए। फॉर ब्लू रीजन, ब्लू रीजन के लिए सबसे पहले ब्लू रीजन की रेडियस कितनी होगी? यहां से यहां तक 21 थी प्लस 10.5, तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू 21 प्लस 10.5 इज इक्वल्स टू 21 और 10 31.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा इस ब्लू रीजन का? ब्लू रीजन का एरिया होगा इस सर्किल में से ब्लू वाले सर्किल में से इस सर्किल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू पाई कॉमन आ जाएगा, 31.5 के होल स्क्वायर में से माइनस करना है कितना? 21 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 31.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 992.5 और 21 का होल स्क्वायर 441 और 22/7 इसको इसमें से माइनस करके आ जाएगा 551.35। प्रोडक्ट कर दीजिएगा, फाइनल आंसर 132.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा आपका? ब्लू रीजन का एरिया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लू रीजन का एरिया हो गया। नेक्स्ट रीजन है आपका ब्लैक रीजन। तो फॉर ब्लैक रीजन बात कर दें अगर ब्लैक रीजन की, तो यहां से ब्लू रीजन तक जो रेडियस हुआ था 10.5 प्लस 10.5, यहां से लेके यहां तक की रेडियस कितनी हुई थी? 31.5। 31.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा रेडियस? 31.5 प्लस 10.5 42। सो रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन ये हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू पाई 42 का होल स्क्वायर में माइनस कर दो अंदर वाले सर्किल का एरिया, जिसका रेडियस कितना था? जिसका रेडियस था 31.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू तो 22/7 है, 42 का होल स्क्वायर 1764 माइनस 31.5 का होल स्क्वायर किया था हमने यहां पर 992.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस करने के बाद 22/7 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? 771.75। सिंप्लीफाई करिएगा इसको 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके नेक्स्ट ब्लैक रीजन का एरिया हो जाएगा। और लास्ट रीजन कौन सा है आपका? व्हाइट रीजन। फॉर द नेक्स्ट है आपका व्हाइट रीजन। व्हाइट रीजन के लिए रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन 42 प्लस 10.5। यहां तक 42 हो गई थी प्लस 10.5 और तो पूरी कितनी हो जाएगी ये? 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा व्हाइट रीजन का? एरिया ऑफ व्हाइट रीजन एरिया हो जाएगा पाई 52.5 के होल स्क्वायर से माइनस कर दीजिए अंदर वाले सर्किल रेडियस कितना था? 42 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 52.5 का होल स्क्वायर 2756.5 माइनस 42 का होल स्क्वायर 1764। 22/7 इंटू माइनस कर दीजिए दोनों को, माइनस करके आ रहा है 992.25। और सॉल्व करके फाइनल आंसर आ रहा है आपका 3180
18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस रीजन का एरिया आ गया आपका? ये व्हाइट रीजन का एरिया आ गया। दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इस डायग्राम में सर। अंदर वाला जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। तो गोल्ड रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर, बिकॉज गोल्ड रीजन इज लाइक अ सर्किल। तो पाई और आर है आपका 10.5। नेक्स्ट है रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? अब हम आपको अब ये गोल्ड रीजन हटाइए यहां से। अब ब्लू का रेड का कैसे निकलेगा? इस गोल्ड में से इस रेड के एरिया में से इस गोल्ड का एरिया क्या कर दो? माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रीजन के लिए, नेक्स्ट के लिए क्या होगा? ब्लू के लिए इस ब्लू वाले सर्किल में से रेड वाले सर्किल का एरिया क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगा? नेक्स्ट वाले सर्किल ब्लैक वाले रीजन के लिए इस ब्लैक वाले सर्किल के एरिया में से इस ये जो नेक्स्ट वाला रीजन था अंदर वाला ब्लैक के ऊपर कौन था? ब्लू, उसका एरिया माइनस कर दीजिए। और लास्ट के लिए, सबसे लास्ट के लिए व्हाइट रीजन के लिए क्या करेंगे? ब्लैक वाले व्हाइट सर्किल के एरिया में से इस ब्लैक वाले सर्किल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और लास्ट व्हाइट रीजन का एरिया आ जाएगा। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का ऑफ एक्सरसाइज 12.1। स्टूडेंट, in our today video complete up to this question number 3, and it is very necessary learn all the formulas which is related to this chapter. Up to that, thank you, have a good day.